हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। उसका नाम है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अभी ये जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, तो हम जानेंगे अभी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में और उसके यूज़ के बारे में। तो it is a rather quick and efficient method for the polymer fractionations. This gel permission chromatography is used to separate or isolate the larger size particle as well as larger size particle and small particle. That means it is the separation technique. It is a separation technique. That means to separate the molecule from a mixture of a given sample, this technique is used. The principle of a gel permission chromatography is in any column chromatography, the process as the solute travel inside the column from one end to another. It is transfer between the two phases. One remains stationary and other is a mobile. In solid liquid chromatography, stationary phase is a solid and mobile phase is a liquid. In liquid chromatography, both the phases are liquid, but these two liquid being immiscible with each other. Gel permeation chromatography is a more correctly termed एज अ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी को हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि या इस क्रोमेटोग्राफी में अगर हमको मिक्सचर में से दो कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो लार्जर साइज कंपोनेंट और स्मॉलर साइज कंपोनेंट, दैट मीन्स दिस सेपरेशन इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देयरफॉर दिस chromatography is called as the gel permission chromatography is also called as a size exclusion chromatography. जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी को वैसे मॉलिकुलर सिव क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। हम अभी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के बारे में जान रहे थे। अभी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का परफॉर्मेंस लैब में कैसा किया जाता है और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा किया जाता है, ये हम अभी देखेंगे। हियर वन डायग्राम इज गिवन। इन दैट डायग्राम देयर इज अ सैंपल बॉटल is placed on the left hand side and there is a one column is present on the right hand side of this sample bottle. That means in that sample the solvent is used where the polymer samples are dissolved. These sample molecules are inserted in the column. In that column the some porous beads are arranged so that when the polymer sample are introduced into the column, then the larger sample do not trapped in the porous bead, but the smaller sample trapped in a porous bead. Therefore the larger sample is eluted first from this column containing porous bead. After the elution of the larger sample, these samples are detected in a detector, and after detection of this larger sample it gives us some signal like this. These peaks indicates that the presence of a larger sample, and after that these are collecting in a collecting tube. यानी कि हमने उस सैंपल बॉटल में पॉलीमर का सैंपल लिया और उसको एक कॉलम में जब इंसर्ट करने जा रहे हैं, जब भी हम सैंपल कॉलम में इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पोरस बीड होता है
और पोरस बीड में जो स्मॉलर सैंपल है, स्मॉलर मालिक्यूल वो ट्रैप हो जाती है, और जो लार्जर मालिक्यूल है वो लार्जर मालिक्यूल वो ट्रैप नहीं होते। इसलिए ये कॉलम में से लार्जर सैंपल इल्यूटेड हो जाती है। प्राइमरीली larger sample is eluted from this column and it is detected in a detector and the signal is given to the signal is given in the spectra. If the larger sample are detected in a detector, then the spectra shows the peaks. That means the polymer molecules are, it shows the presence of a polymer molecule in a detector. At that time these polymer samples are collected in a collecting tube. जो कॉलम दिए जाते हैं जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे कि कॉलम में जो सर्कल दिखाए गए हैं और सर्कल यानी कि पोरस बीड होता है, और जो बाकी बचा स्पेस है उसमें जो हम सैंपल सॉल्यूशन डालेंगे वो सैंपल सॉल्यूशन रहेगा। उसमें से जो छोटे पार्टिकल होते हैं यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल, दे आर ट्रैप्ड इन दिस porous bead. That means here the volume of a porous bead only is denoted by the letter V0. V0 is the volume of a porous bead. In the next diagram, it has been seen that there is a one column, and in that column some porous beads are available, and also the solution is also available. That means it shows the total volume of this column. That means in that column some porous beads are available, as well as the sample solution is also available. That means the total volume, that means the volume of a bead as well as the volume of this sample solution, that means total volume of this column is denoted by the letter Vt. Now in the third case, or in the third column, in the third column जो पोरस बीड है वो डार्क स्पॉट करके दिखाए गए हैं, और जो कॉलम है, कॉलम का वॉल्यूम और ये डार्क स्पॉट का वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम में से हमने डार्क स्पॉट का यानी कि पोरस बीड का वॉल्यूम माइनस कर लिया, तो जो इंटरनल वॉल्यूम है वो इंटरनल वॉल्यूम हम डिनोट करने जा रहे हैं VI से. दैट मीन्स द टोटल वॉल्यूम मीन्स पोरस बीड और कॉलम में जो सॉल्यूशन है, जो सैंपल सॉल्यूशन है, उसका टोटल वॉल्यूम होता है. देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय Vt. ओनली पोरस बीड का वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम आप वाइड्स बोल सकते हैं हम, तो V0 से डिनोट किया गया है. और Vi बी द इंटरनल वॉल्यूम. दैट मीन्स कॉलम का वॉल्यूम यानी कि टोटल कॉलम के वॉल्यूम में से अगर हम वाइड स्पेस का वॉल्यूम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कॉलम. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू शो हियर द वैल्यू ऑफ KD. KD means distribution constant. V indicates that the eluted volume. V0 is the volume of voids and Vi is the internal volume of column. तो लार्जर मालिक्यूल के लिए ये फार्मूला बनता है V माइनस V0 डिवाइड बाय Vi. अगर हम स्मॉल मालिक्यूल कंसीडर करते हैं तो स्मॉल मालिक्यूल जो है वो पोरस बीड में ट्रैप होते हैं. पहले जो मालिक्यूल निकलेंगे बाहर वो लार्जर मालिक्यूल रहेंगे, और जो बाकी बचे मालिक्यूल है स्मॉलर मालिक्यूल, थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद वो स्मॉलर मालिक्यूल भी एल्यूटेड हो जाएंगे
तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल डिनोट करते हैं के एवरेज से, के एवरेज यानी कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और के ए वी इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो डिवाइड बाय इंटरनल वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, तो वी टी माइनस वी जीरो यानी कि टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो हम वी आई की जगह पे वी टी माइनस वी जीरो पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा बनेगा के ए वी इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो डिवाइड बाय वी टी माइनस वी जीरो। यही जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का हम इस्तेमाल करके एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और लो मॉलिक्यूलर वेट के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर एज वेल एज average distribution constant, then we have to first use this technique for a known sample, and if we find out the value of molecular weight of a known sample, then it is taken as a, if we find out the value for a known sample, if we find out the value of polymer for a known sample, then it is taken as a reference, and again we have to perform next experiment for the unknown sample and then calculate the values of a molecular weight of a unknown sample. तो देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर में से दो कंपोनेंट हम सेपरेट करने जा रहे हैं, और तो सेपरेशन डिपेंडेंट होता है साइज पे। देयरफॉर हम जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। इसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है या मॉलिक्यूल सेव क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल के बारे में देखा था कि जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। तो कोई भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब हम कॉलम में सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें लार्जर मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर हो तो उसमें सॉलिड सैंपल इज अ स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड सैंपल इज़ अ मोबाइल फेज। यह हमने प्रिंसिपल में देखा। तो हम सॉलिड सैंपल का जो सॉल्यूशन सैंपल को हम सैंपल का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको कॉलम में फिल करते हैं। कॉलम में फिल करने के बाद उस कॉलम में पोरस बीड होते हैं जहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं हो पाती और स्मॉलर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। तो लार्जर मॉलिक्यूल comes out first from this column, that means it is eluted first and it is find out in the detector, and in that detector it gives from the reading in a detector it gives some signal, that means it shows the presence of the polymer sample, and after that it is collected in a collecting tube. Similarly the same procedure also follow for a smaller molecule, because the smaller molecule which is trapped in a porous bead, after some time they are also escaped from this porous bead and they are eluted after the first elution, and it is also detected in a detector and it also shows a signal. After that it is collecting in a collecting tube. This is the next this is explained in the next slide. After that we have to see here there are three volumes included, three volumes involved in a column. First one is the volume of voids, that means porous bead, volume of a porous bead, and total volume is the volume of a column, and the internal volume, it is the volume of remaining volume other than the porous bead in a of column. That means total volume of column minus volume of voids is equal to the internal volume of the column. उसके बाद हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट
हम कैसे निकाल रहे हैं, तो V माइनस V0 डिवाइड बाय Vi। ये फार्मूला हम लार्ज मॉलिक्यूल को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल भी डिटेक्टर में डिटेक्ट हो रहे हैं तो हम एवरेज स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए और लार्जर मॉलिक्यूल के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द VE माइनस V0 डिवाइड बाय VT माइनस V0। VI को हम VT माइनस V0 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद के स्लाइड में हमने बताया कि अगर हम एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और लो मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और लो मॉलिक्यूलर वेट में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो उस टाइम हम पहले जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो नॉन सैंपल का करेंगे। नॉन सैंपल का एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा है उसको हम रेफरेंस लेके यही सेम एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी परफॉर्म विथ द unknown sample, and this technique is useful to find out the molecular weight of a unknown sample। तो इस प्रकार से जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में हम हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर सैंपल और लार्जर साइज पॉलीमर सैंपल एंड स्मॉलर साइज पॉलीमर सैंपल को आइसोलेटेड कर सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। द जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी इज एक्सट्रीम। देयर आर 5 advantages are given here. The first advantages is that the gel permeation chromatography is extremely valuable for both analyte and preparative work with wide variety of system रेंजिंग फ्रॉम लो टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि ये जो GPC है, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, ये लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी यूज की जा सकती है। सेकंड एडवांटेजेस है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू वाइड वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट एंड पॉलीमर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जेल यूज। In the second advantages, it is said that this technique is used for wide variety of solvent and polymer। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए और पॉलीमर के लिए ये यूज हो सकती है। और थर्ड एडवांटेज बताया गया है, द फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज सफिशिएंट फॉर दिस एनालिटिकल वर्क। दैट मीन्स कम से कम सैंपल की भी ज़रूरत रहेगी जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के लिए। इट इज़ द टेक्निक विच रिक्वायर a small quantity of sample for analytical work। And after that, the fourth advantage is that the determination of molecular weight is complete as a short a time, a few minutes, using modern high pressure high speed equipment। जो दूसरे हाई स्पीड और हाई प्रेशर इक्विपमेंट होंगे उनसे भी फास्ट में ये जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी काम में आती है। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई पॉलीमर। And last advantage is that it is used for maximum number of polymer as well as a high polymer। तो मेरे ख्याल से आपको जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी जानकारी ये वीडियो में मिल गई होंगी। आप फिर से दूसरी किताबें देख के और कोई वीडियो देख के वीडियो के साथ में कोई किताब पॉलीमर केमिस्ट्री की अच्छी से अच्छी किताब देख के आप पढ़ाई करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और यहीं पे अपना एक टॉपिक स्टॉप करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।